ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣ। ਇਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਨਾ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਏਉ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਏਸ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਰਚਨਾ ਤੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਯੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣ। ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣ। ਪਰਮਾਣਿਕ ਤਿੰਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਜੁੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਗਤ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਟਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਨਮਣਾ, ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣ, ਪਰਮਾਣਿਕ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੰਨੇ, ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸਤੋ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸਥੂਲ ਮਾਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਮਾਜ਼ੀ, ਹਾਲ, ਮੁਸਤਕਬਿਲ, ਭੂਤ, ਭਵਿਸ਼, ਵਰਤਮਾਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਜਾਗਰਤ, ਸਵਪਨ, ਸਖੋਪਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਜੀਵ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
जोगियां ते कुछ आम प्राचीन संतां दे मन विच ख्याल आया, जो जन्म दे रहा है हो ही नहीं सकता कि ओही मार रहा है, क्योंकि उन्होंने मारन का फिर की प्रयोजन हो गया, क्योंकि जन्म उसने दिता है। जिसने जन्म दिता है मारन का सवाल नहीं पैदा होता। तो जन्म कोई होर दे रहा है, परले कोई होर कर रहा है, ते फिर होर पकड़ दे च आई गल पालना कोई होर कर रहा है। और ये तीन शक्तियां वख-वख ने। बाद विच इन्हां तीन शक्तियां नूं नाम भी दे दिते गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा संसारी है, विष्णु भंडारी है, शंकर लय करने वाला है, परले करने वाला है। तो एक जन्म देने वाला है, एक पालना करने वाला है, एक मौत देने वाला है। और इन्हां तिन्नां ही ख्यालां दे आधार देते ये तीन देवते साडे देश विच प्रमाणिक मने गए। ज्यादा मंदिर महादेव ते विष्णु दे ने, ब्रह्मा जी दे मंदिर भारत विच नहीं ने। किधरे अखौती मंदिर एक कद मौजूद है। कारण जन्म हो गया, तो जन्म हो गया, हुण उस नाल कोई संबंध नहीं। हुण ते उस नाल संबंध होवेगा जो पालना करे या जिस तो मौत होनी है। जिथों जन्म हो गया, जिथों असी आ गए, उस नाल दोबारा ते कोई संबंध है नहीं। इस वास्ते ये बहुत वड्डा स्वार्थ समझो कि ब्रह्मे दे फिर कोई मंदिर नहीं बने, उदी पूजा भी नहीं हुई, किसी थां कोई उसकी आरती भी नहीं गायन होंदी। बाकी देवतियां दी तरह उन्हों कोई इष्ट रूप दे च भी नहीं मनदा। सिर्फ इतना ही ख्याल है कि वह वेदां दा रचयिता है, संसार दा रचयिता है, संसार नूं बनाने वाला है। पाला पैना है उस नाल जिसने पालना करनी है। तो विष्णु दे बहुत मंदिर ने, बहुत मंदिर ने। पालना पदार्थ नाल होंदी है, पालना धन नाल होंदी है। तो फिर नारायण दे नाल लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो मुराद पदार्थ, वस्तु, संपदा, जिस दे राही पालना होंदी है, जिस तो बिना जीवां दी पालना होनी अत्यंत कठिन है। तो लक्ष्मी नारायण, नारायण दी महिमा तां है कि लक्ष्मी है। ते लक्ष्मी तो बिना पालना हो नहीं सकती। धन पदार्थ तो बिना जीवां नूं तृप्त करना शरीरक तल ते बहुत औखा है। तो लक्ष्मी नारायण दी खूब पूजा हुई, खूब मंदिर, काफी उदी पूजा ते प्रतिष्ठा। लेकिन डरे हुए मनुखा ने, भयभीत मनुखा ने शंकर दी भी पूजा की। नारायण दी पूजा इस वास्ते हुई पालना होंदी रहे। शिवजी दी पूजा इस वास्ते हुई मौत तो बचीए, ये बाकियां दे घर ते जावे पर साडे घर ना आवे। इस वास्ते पूजा हुई, इस वास्ते सजदे होए। एक दी पूजा इस वास्ते हुई कि रोज साडे घर आवे। लक्ष्मी नारायण दा पूजन इस वास्ते ये रोज साडे घर आवन, क्योंकि नारायण आएगा लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी तो नारायण आएगा, पूजन चलिया, रोज पूजन चलिया, ये आवन। ते शंकर दी पूजा इस वास्ते हुई ये ना आवे, ये कम से कम साडे घर तो दूर रवे। ये मौत दा देवता है, ये परले दा देवता है। तखय्यल है कि ओदा वासा मसाणा चाहुंदा है, मुर्दे दियां खोपड़ियां ओ गल विच पाउंदा है। तो हकीकत है मौत दा आखिरी अंजाम ते मसाण ही है, शमशान घाट है। शंकर दे आले दुआले जो प्रतीक कट्ठे कीते गए सारे दे सारे मौत दे, और विष्णु जी दे आले दुआले जिन्ने प्रतीक कट्ठे कीते गए वो जीवन दे ने। कमल फुल है, सोने दियां मोहरां अगों पईयां ने थाले दे। हाथी फुआर कर रहा है, बरखा कर रहा है, लक्ष्मी नाल खड़ी है, और कोई भगत जन बैठा है बीणा छेड़ रहा है, एक तारा छेड़ रहा है। ये सब जीवन दे प्रतीक ने, जिंदगी दे प्रतीक ने।
पर बैठे ने महादेव खामोश, अखां भी मूंद के बैठे ने, चुप बैठे ने, बेरौनकी है, तन ते स्वाह मली हुई है। और ये प्रतीक है कि तन ने आखिर स्वाह ही हो जाना है, राख ही हो जाना है। ये प्रतीक ने, एक मौत दा प्रतीक, एक जीवन दा। एक जीवन दा इशारा कर रहा है, एक मौत दा। जद इस ढंग दे नाल छापे खाने नहीं सन, किताबां नहीं सन, लिखाई पढ़ाई नहीं सी, तो मनुखां दी दुनिया च चलदी सी इशारियां दी भाषा। और इस ढंग नाल मनुख नूं धार्मिक बोध भी कराया जांदा सी, संसार दा बोध भी कराया जांदा सी। सहजे सहजे तालीम पढ़न लिखण दा ते छापे खानियां दा जन्म होया, तो इशारियां दी भाषा दी थां ते शब्द भाषा, बोल चाल दी भाषा ने ले ली। लेकिन धार्मिक दुनिया दे ओ प्राचीन इशारे अज भी मौजूद ने। यह गल वखरी है कि समझण तो लोकी सहजे सहजे असमर्थ होंदे जा रहे ने और उन्हां नूं वास्तविक रूप देई जांदे ने, जबकि वास्तविक रूप मिथिहास बन जांदा है, इतिहास नहीं, हकीकत नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, आम प्राचीन जगत दी ये प्रथा है कि ये प्रकृति, ये मादा युक्ति दे नाल प्रसूत होई। इस तो तीन चेले बने, ब्रह्मा, विष्णु ते महेश, जो प्रमाणिक ने। 33 करोड़ देवते दे ये तीन प्रमाणिक ने, सिरमौर ने। ते साहिब कहंदे ने, एक नूं संसारी होण दा लकब दे दिता गया। संसारी होण तो मुराद सिर्फ संसार दी रचना ही कीती, जो रचयिता है, पालनहार नहीं है। इस ढंग नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि तिन्ने ही अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि जो रचना कर सकता है वो पालना नहीं कर सकता, जो पालना कर रहा है वो मौत नहीं कर सकता, और जो मौत कर रहा है वो सिरजना नहीं कर सकता। ये तीन एक एक शक्ति। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने नहीं, हकीकत यह है जितों उत्पत्ति हो रही है पालना भी उस तो हो रही है, और जिस तो पालना हो रही है नाश भी उस तो हो रहा है। पर जे इत्थे सवाल खड़ा हो जाए कि जिस तो उत्पत्ति हो रही है मौत भी उस तो हो रही है, गल समझ दे च नहीं आउंदी। क्योंकि जिहड़ा बनाएगा वो मिटाएगा क्यों, और जिन्हें मिटाना ही है वो पालना क्यों करेगा। तो इहदे वास्ते गुरबाणी दा एक बड़ा सुंदर जवाब है कि ये परमात्मा दा कोई मुद्दा ते मकसद नहीं है, उसका एक खेल है। शौक दे नाल दरिया दे कंडे ते बच्चे अपने घर बनांदे ने, और जितनी शौक नाल बनांदे ने, जितने हस के बनांदे ने, उतनी हस के तोड़ देंदे ने। बनाण लगिया जो हासा मौजूद है, तोड़ लगिया भी वो खिलखिलाहट मौजूद है। जिहड़ी प्रसन्नता बनाण लगिया है, तोड़न लगिया भी वही प्रसन्नता है। और जितनी लगन ते मेहनत दे नाल बनाया है, उतने ही चाव मल्हार ते लगन नाल तोड़ देता है। क्या प्रयोजन है इस बच्चे का? अगर प्रयोजन होंदा, कोई मुद्दा होंदा, मकसद होंदा, तो तोड़न लगे इसने रोना सी, तड़पना सी, बेजार होना सी। नहीं, ये उसका खेल है। तो साहब कहते आवन जान एक खेल बनाया, आगे आकारी कीनी माया। जगत विच आवना ते जावना परमात्मा दा एक खेल है, मकसद नहीं। जिस कम दे पिछे कुछ मकसद रख लईए उत्थे तनाव खड़ा हो जाता है। क्यों तनाव इस गल दा खड़ा हो जाता है, हुण मकसद दी पूर्ति होवेगी कि नहीं, क्योंकि मकसद रखे। ते जिसने जिस कम दे लई कुछ मकसद रखे, इहदा मतलब है उसने किधरे पहुंचना है, ते किधरे पहुंचना इस गल दा सबूत है अजे रस्ते च है, अजे मंजिले मकसूद ते नहीं। ते परमात्मा दा भी कोई मकसद है, उसने भी किधरे पहुंचना है। ये ते फिर अधूरा हो गया, ये ते फिर अपने घर दे च नहीं है। अगर उसने भी कोई मुद्दा रखे है, मकसद रखे है, स्पष्ट गल है। जैसे जैसे मनुख जिस कम दे नाल मकसद जोड़दा है, तनाव ते खड़ा हो जाता है। हुण मकसद दी पूर्ति होवे तां मैनू सफलता मिलेगी, तां मैं अगे वध सकांगा। ते जे मकसद दी पूर्ति ना होवे ते मायूसी आउंदी है, उपरामता आउंदी है। और अजे मकसद दूर है, अजे प्रयोजन दूर है, मुद्दा मंजिल दूर है,
लेकिन तनाव पहले ही खड़ा हो जाता है कि सफलता मिलेगी कि नहीं, मैं पहुंच सकांगा कि नहीं, मेरा पहुंचना ही मेरी सफलता है। ते जे परमात्मा दा ये सब कुछ करना भी किधरे पहुंचना है तो इतनी गल स्पष्ट होएगी, परमात्मा को अजे सफलता नहीं है और वो भी दुबदा च पे है कि मैं सफल होवांगा कि नहीं। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी कहते नहीं, जगत दी रचना दे संबंध विच उसदा कोई मकसद नहीं, उसदा कोई मुद्दा नहीं, ये उसदी एक लीला है, ये उसदा एक खेल है। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। मुद्दा नहीं है उसदा, कोई मकसद नहीं है, लेकिन बनाई जा रहा है। इस वास्ते परमात्मा दी दुनिया तनाव नहीं है, खिंचाव नहीं है। वो जिथे है अपने टिकाने ते, वो जिथे है प्रसन्न है, आनंद है, खुशी दे च है, खेड़े दे च है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बड़ा मधुर कलाम कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये जगत एक तमाशा है ते मैं इस तमाशे नूं वेखण वास्ते आया। दरअसल जो तमाशा वेखदा है वो ते प्रसन्न रहिंदा है, पर जो तमाशा बन जांदा है वो लोकां दी नज़रां 'च गिर जांदा है, दुखी हो जांदा है, बेजार हो जांदा है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक कह रहे ने, ऐ बंदे तमाशा वेख, तमाशा ना बना। कई बंदे तमाशा ही बन गए ने, उन्हां दा जीवना और रोजमर्रा दी तर्जे जिंदगी तमाशा बनी हुई है और लोकी वेख वेख के खुश होंदे ने। जिन्हां नूं वेख वेख के दूजियां नूं प्रसन्नता मिले, समझ लो बंदा ते तमाशा बन गया, एक खेड बन गया। लड़ रहे ने घर दे च, पड़ोसियां नूं स्वाद आ रहा है, रस आ रहा है, हाथापाई कर रहे ने, गाली गलोच कर रहे ने, एक दूजे दे केस पुट रहे ने, एक दूजे नूं जख्मी कर रहे ने। हजारां दी भीड़ इकट्ठी हो गई है तो हजारां लई तो तमाशा बन गए। साहिब कहंदे नहीं, ऐ बंदे जगत दे जो कुछ हो रहा है ये तमाशा है और इस तमाशे नूं तू वेखण वाला बन, न कि तू खुद तमाशा बन। और भगत जना तो बाद कुछ दार्शनिक अजीम चिंतक जो जीवन दे गहरे तल विच झात मार सके, ये गल वखरी है कि जीवन दे गहरे तल विच जा ते नहीं सके लेकिन झात मार सके ने। जो पहुंच गए ने जीवन दे गहरे तल विच वो ते संत ने, भगत ने, पर जो झात मार सके ने वो दार्शनिक ने, महान दार्शनिक। तो ये दो श्रेणियां जगत विच महान ने। जो जीवन दे गहरे तल विच चले गए ये ते महान ने, पर जिन्हां ने झात मार के गहरा तल वेख लिया वो भी घट ने, वो भी महान ने। तो इस तरह की गहराई विच झाती मारी है उर्दू दे प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने। वो कहंदा है, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। ये सारी दुनिया मानिंद तिफल एक खेल है मेरे सामने, बच्चे दा खेल, तिफल बच्चा। अजीबो गरीब जो कुछ जगत विच हो रहा है ये सब कुछ मेरे लिए बच्चियां दे खेल तो ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर अगां चल के कहंदा है, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन ते रात ये तमाशा मेरे सामने हो रहा है। ये गल वखरी है कि रात दा तमाशा कुछ हो रहा है, दिन दा तमाशा कुछ हो रहा है। पर मैं देख रहा दिन दे तमाशे भी, रात दे तमाशे भी। फिर कहंदा एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे। तख्ते सुलेमानी ये भी एक बच्चियां दा खेल है। राजनीतिक लिए ये खेल नहीं है, ओदा तो एक मुद्दा है, मकसद है तख्ते सुलेमानी तक पहुंचना, तख्त तक पहुंचना। वो अपनी जिंदगी भी दाव ते ला सकता है। सफलता ना मिली उन्होंने बहुत दुख भी हो सकता है कई दिन मंजे तो ही ना उठ सके, इतनी उसनू चोट पहुंचे, इतनू उसनू आघात पहुंचे। क्योंकि तख्त तक पहुंचना उसका मकसद है
पर गालिब कहंदे ने अगर मैनू कोई चुक के भी बिठा देवे तो मैं तो यह समझांगा ये भी एक बच्चियां दा खेल है, इस तो ज्यादा कुछ नहीं। ते जेदे लई तख्ते सुलेमानी एक खेल है तो ओदे लई तख्ते सुलेमानी जिंदगी दा मुद्दा नहीं है, मकसद नहीं है। ओदा मकसद कोई होर होवेगा, ये नहीं है। तो एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। आजाज मौजियां दी जमा, मौजे करामात। तो गालिब कहंदे हजरत ईसा दे मौजजे, मौजजे की कब्र ते हथ लाया है, मुर्दा जिंदा हो गया है। बीमार दे सिर ते हथ फेरिया है, तंदुरुस्त हो गया है। अंधे दियां अखां ते हथ रखे है, वो सुजाखा हो गया है। गालिब हस के कहंदे ये भी बच्चियां दे खेल तो ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ एक खेल है। हजरत ईसा दे मौजे, तख्ते सुलेमानी, दिन रात विच जो कुछ हो रहा है सब कुछ एक तमाशा है। यह गल वखरी है कि जीवन दे इस महान गहरे तल नूं जो ये महापुरुष वेख सकिया है उत्थे तक पहुंचिया ते नहीं, पर वेख लेना भी कोई घट नहीं है, बहुत वड्डी साधना है। यह गल वखरी है कि दिमागी साधना है। पर जिन्हां ने अध्यात्मिक साधना की थी, हेमकुंड दे तपीश्वर ने हेमकुंड विच बैठ के उन्हें जीवन दे गहरे तल दे झात नहीं मारी, वो जीवन दे गहरे तल दे पहुंचे है। उस ठिकाने ते पहुंच के कह रहा है, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तमाशा वेखण वास्ते आया, मैं तमाशा खुद नहीं आ। अगर वो तमाशा खुद होंदे ते जद 4 बच्चे शहीद होए ते रोंदे, ते जगत ते रोंदे आया नूं वेख के हसदा, कदी रोंदे आया नूं वेख के रोंदा नहीं है। इस वास्ते आम कहावत है, तुसी हसोगे जगत नाल हसेगा, पर जद तुसी रोवोगे जगत रोण नूं तैयार नहीं होवेगा। रोने दी कौन सांझ पांदा है? हासे दी सांझ पांदा है। जीवन दी सारी सांझ पांदे ने, मौत दी कौन सांझ पावेगा? नफे दी सारी सांझ पांदे ने, नुकसान दी कौन सांझ पावेगा? सारे रिश्ते सुख दे ने, दुख दी रिश्तेदारी कौन जोड़ेगा? साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा फैसला, सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न कोय, कहो नानक सुन रे मना, अंत सहाई होए। हरि दा भजन कर हे मन, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। जगत ते सुख दा संगी है, इतना वड्डा संगी है कि सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। बहुत लंबी चौड़ी जिड़ी भीड़ है तेरे आले दुआले, किधरे ए ना समझ नहीं कि मेरे संगी साथी ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते नहीं, सब सुख दे साथी ने। और जिस दिन तू देखेगा कि तेरी झोली च सुख नहीं रहे, तू चिराग लेके भी ना संगियां साथियां नू ढूंढेगा, नहीं लभने। एक किसे पासे मिलने नहीं। सारा शोर शराबा, सारी भीड़, सारा वर्तन वलेवा, सारा संबंध सुखदा है। सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चहूं दिस गहरे। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बच्चे शहीद हो गए, पिता शहीद हो गए, ते आप दावे नाल कहंदन, चाहा शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमान दस्त पेची दा मार, चे मर्दी के अखगर खामोशां कुनी, के आतिश दा मारा फिर रोजां कुनी। की होया कि बलदे हुए भांबणा दे चों 4 चिंगारियां बुझ गईयां। ये सब कुछ उन्हां लई एक तमाशा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि प्रचलित गाथा ते यह है, और खास करके योगियां दे प्रचार दे ये खास गल आई कि ये मादा, ये माया जुगती नाल प्रसूत होई, विआही, और उस तो 3 प्रमाणिक चेलियां ने जन्म लिया, जिहदे च एक संसारी है, एक भंडारी है, और एक लय करने वाला है, एक परले करने वाला है। पर हकीकत की है, साहिब कहने ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवे फुरमान। हकीकत यह है कि परमात्मा जिवें चाहता है तिवें अपनी प्रकृति नूं चला रहा है, जिवें उसका हुक्म है
तिवें ही जगत दे सब कुछ जो है हो रहा है, उस तो बिना होर कुछ नहीं। उस तो ही उत्पत्ति हो रही है, उस तो ही पालना हो रही है, उस तो ही नाश हो रहा है, क्योंकि उसका कोई मुद्दा नहीं, उसलिए ये सब कुछ तमाशा है, उसलिए सब कुछ एक खेल है। एक मिथ है बड़ी सुंदर कि एक दफा शिवजी ने प्रार्थना की थी, हे अकाल पुरख कि तू मैनू जिहड़ी ये सेवा बख्शी है मौत दी, मैं जिस घर विच जाना रोना पिटना शुरू हो जाता है, ये मैनू चंगा नहीं लगता, ते मेरी सेवा बदल दिती जाए। जिहड़ा काम इंद्र नू सौंपिया गया है बरखा करन दा, ये काम मैनू दिता जाए। तां परमात्मा ने आखिया, शंकर बरखा करनी तेरे सुभाव दे अनुकूल नहीं, मौत करनी तेरे सुभाव दे अनुकूल है, ते असी कम दिता है तैनू तेरे सुभाव दे अनुकूल। पर शिव जी ने हट कीती, नहीं, जे बरखा इंद्र कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरी झोली च ये सेवा पाई जाए। बहुते तरले करके हट करके परमात्मा ने यह सेवा झोली च पा दी। अच्छा हुण आइंदा तो बरखा तू करेगा। शिव जी ने यह वर प्राप्त किया, जद मैं डमरू वजावां उदों ही बरखा होवे, उस तो पहले नहीं होनी चाहिए। तथा उस्तु कर दिता गया, ठीक है तू डमरू वजाएगा बरखा होवेगी। मात लोग दे आए शिव जी, मिथ्यास किसान लोग हल चला रहे सन, तो शिव जी कहने लगे, सुनो हल ना चलाओ, क्यों? 13 साल तक मींह नहीं पैना, बरखा मेरे हथ च लेके वर आया है, बरखा दा कर रहा है मौत अपने सुभाव के मुताबिक। 15 दिन बाद जद फिर उत्थों लंघिया ते किसान बीज पै पावन, ते शिव जी गुस्से च आके कहने लगे, जद मैं कह दिता है 13 साल तक मींह नहीं पैना, ते बीज क्यों रोल रहे हो जमीन दे च, क्यों नाश कर रहे हो, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? तो किसान कहने लगे, जे रब चाहेगा ते बिना मींह ते भी बीज उग आणगे, ते जे हुण ना भी उगे ते 13 साल बाद मींह पैना है, ते 13 साल तक असी बीज बोया ना, हल चलाया ना, तो असी ते हल चलाना भुल जावांगे, साडी संतान भुल जाएगी, असी खेतीबाड़ी का काम ही भुल जावांगे। थोड़े जिहा शिव जी अगे चले गए, रुख दे थल्ले बैठे, ते ख्याल आया जे किधरे मैं 13 साल डमरू वजाया ना ते मैं वजाना भुल जावांगा। तो एकदम झोली दे चों डमरू कढ़िया और उन्होंने वजाण लग पे, ते वजांदे आई मींह पै गया। गुस्से च आए भी मेरी चाहत तो बिना किस तरह होया, अलहाम होया, आकाशवाणी हुई, तू ही वर लिया सी जद मैं डमरू वजावां उदों बरखा होवे, तो हो गई है बरखा। शिव जी दे हथ जुड़ गए, कहने लगे, नहीं ये ते जो कुछ तू चाहना है वही कुछ होंदा है, जो कुछ असी चाहते हैं वो कुछ नहीं होंदा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते ने, ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवे फरमान। जिवें उसनू भावदा है ते जिवें उसदा हुक्म है, तिवें ही वो जगत नू चला रहा है, ते तिवें ही उसे तरीके नाल ही जगत दे सब कुछ हो रहा है। वो वेखे ओना नदर ना आवे, बहुता ए वडान। बहुती आश्चर्य लीला यह है कि परमात्मा सारियां नू वेखदा है, सारे जीवां नू वेखदा है, पर सारे जीवां नू परमात्मा नहीं दिखाई देंदा। वो वेख रहा है लेकिन जीवां नू वो नहीं दिखाई दे रहा। महाराज कहते मेरी दृष्टि सब तो बड़ा विडान हैरान कुण खेल जिहड़ा है वो यही है कि हर एक दे उत्ते निगाह रखी बैठा है, लेकिन किसी जीव की निगाह के सामने परमात्मा नहीं, अकाल पुरख नहीं। आदेश तिसे आदेश, आदेश है सजदा है उसनू किसनू, जो जगत दा मुड है ते जिसदा कोई मुड नहीं, और जो धबियां तो रहत है, नाश तो रहत है, ते जिसदा वेश समुचे जुगां जुगांतरां दे इको ही है। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश।